Hello, dear students. Today's date is 26th November 2020, and we'll be taking up worksheet number 58. Students, this worksheet is based on the poem Amanda from Your First Flight. We have already done this poem in the class through Google Meet, but still I'll discuss with you this poem and then we will move on to the worksheet. Before we start, I would like to remind you of COVID safety guidelines. I hope all of you are taking care of yourself and your family. Do remember to wash your hands frequently with soap and water. If soap and water is not available, use sanitizer. Don't go out unless it is an urgent work and wear mask when you're going out and maintain social distance of 2 meters. So Amanda. Amanda is the poem by Robin Klein. Robin Klein is an Australian author of books for children. She was born 28th February 1936 in Campsie, New South Wales and now resides near Melbourne. इस पोएम की जो पोइटस हैं शी इज़ रॉबिन क्लेन एंड शी इज़ ऑस्ट्रेलियन. इन्होंने काफ़ी सारी बच्चों की बुक्स लिखी हैं. तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट पोइटस. नाउ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएम. द प्रेजेंटेड पोइट्री पीस अमांडा has been composed by Robin Klein. The poet had drawn the living picture of a young girl who is longing to be free from continuous control and instructions of her mother. बच्चे जब होते हैं, जब दे आर ग्रोइंग, जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, दे वांट कि वो एकदम इंडिपेंडेंट हो एंड नो बडी शुड इंस्ट्रक्ट देम. कोई उनको इंस्ट्रक्ट ना करे, कोई उनको ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, पाबंदियाँ ना लगाए. तो पोइट ने भी यहाँ पे यही एक यंग गर्ल की पिक्चर ड्रॉ की है. मीन्स बताया है जो चाहती है कि उसकी मदर का कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन से वो बिल्कुल फ्री हो जाए. ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस शी हैज़ बिकम सैड, हेडी एंड मूडी. तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस, नेचुरली पेरेंट्स जो हैं बच्चों पे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस देते हैं फॉर देयर बेटरमेंट, बट शी हैज़ बिकम वेरी मूडी सी हो गई है, सैड सी हो गई है. Now we will take up the poem line by line and try to understand it. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Now here is a young girl. Amanda है, छोटी सी लड़की है, and she is getting instructions. क्या है instructions? कि अपने nails नहीं bite करो, शोल्डर्स को हंच नहीं करो, स्ट्रेट बैठो, ऐसे स्लाउच सा होके बिल्कुल लेजी से होके मत बैठो. एंड देन अमांडा की ये है इमेजिनेशन, ड्रीमी वर्ल्ड. ड्रीमी वर्ल्ड में वो सोचती है कि there's a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. कि सामने एक बड़ा सा सी है और वहाँ पे रहने वाले सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं है. सोल, अकेली, इनहेबिटेड, वहाँ पे मैं ही हूँ, कोई नहीं है. नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप मी, नोबडी इज़ देयर टू गिव एनी रिस्ट्रिक्शन या इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई नहीं है. मैं एक मर्मेड हूँ. मर्मेड होता है बेटा जल परी, जो ड्रिफ्ट कर रही, आराम से बहती जा रही है. As I've told you earlier also, there's a difference between drifting and swimming. Swimming में you have to make your efforts. Drift में you're simply floating without making any effort. तो आराम से वो बहती जा रही है. तो इस explanation को देख लेते हैं. One of the parents sees Amanda biting her nails. The parents tell Amanda not to bite her nails. She's also not to bend her shoulders and to sit up straight. The parent nags. Nags is डांटना, बार बार टोकना, for sitting lazily with her shoulder bent into a stoop. But Amanda is lost in her own dreams. Amanda खोई भी अपने सपनों में. She imagines herself to be a mermaid, drifting joyfully
with the soft waves of the green sea. सोचती है कि मैं मर्मेड हूँ जो आराम से बह रही हूँ पानी में. She imagines that she is the sole inhabitant of the beautiful sea and there is no one to nag or disturb her. सोचती है कि मैं अकेली ही हूँ वहाँ पे बिल्कुल, और मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है. सो यू विल सी कि फर्स्ट स्टेंजा में क्या है, मदर की इंस्ट्रक्शंस है, एंड सेकंड स्टेंजा इज अमांडा की इमेजिनेशन है, ड्रीमी वर्ल्ड है. अमांडा क्या चाहती है वो है. नाउ, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Now you can easily understand कि ये लाइंस किसने कही होंगी. ये है इंस्ट्रक्शंस बाय हर मदर कि अमांडा तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया क्या? क्या तुमने अपने रूम को टाइडी किया? यू नो व्हाट इज टाइडी? टाइडी होता है नीट करना, क्लीन करना. तो आपने अपना रूम साफ़ किया अमांडा क्या? और मैंने कहा था कि तुम्हें शूज़ क्लीन करो. ये सारी मदर की इंस्ट्रक्शंस हैं. And Amanda again is lost in her own world. वो सोच रही है I'm an orphan. She is so much sick of the restrictions that she compares herself to be. She wants to be an orphan. Orphan is who is without parents. जो सोचती है कि मेरे काश पेरेंट्स ही ना होते और मुझे कोई डांटने वाला ही ना होता. तो ये एक बहुत ही ग्रोइंग स्टेज है जिसमें बच्चे को शायद समझ ही नहीं आता कि पेरेंट्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे बेटरमेंट के लिए हैं एंड दे आर गाइडिंग अस ऑन द राइट पाथ. शी सेज कि मैं एक ऑर्फिन हूँ जो गलियों में घूम रही हूँ. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बियर फीट. और मैं आराम से नंगे पैर अपनी मिट्टी को उड़ाते हुए उस पर डिज़ाइन बनाते हुए चल रही हूँ. द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. और फ्रीडम जो है बहुत अच्छी होती है. ना एक्सप्लेनेशन. द पेरेंट आस्क्ड अमांडा इफ शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क. शी इज़ आस्क्ड इफ शी हैज़ टाइडिड हर रूम. शी हैड बीन आस्क्ड टू क्लीन हर शूज़ ऑल्सो. द पेरेंट आस्क्स हर इफ़ शी हैज़ डन दैट. पेरेंट्स उससे बार बार पूछ रही है कि तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, रूम को टाइडी किया, शूज़ क्लीन किए. और ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं और वो सारी जो कि अमांडा को एक लगती है, एक बॉदरेशन लगती है, रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, उसकी फ्रीडम में एक हिंड्रेंस लगती हैं, फ्रीडम में एक रुकावट लगती है. बट अमांडा इज़ लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स. She imagines herself to be an orphan with no parents to nag her. वो सोचती है कि मैं ऑर्फिन हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है, कोई मुझे डांटने वाला नहीं है. She feels happy in being an orphan. She imagines that she is roaming in the street with bare feet. She is making soft pattern as she puts her feet gently in the dust. डिज़ाइन बना रही है पैरों से, मिट्टी में मिट्टी उड़ा रही है. There is all silence about her with no one to nag her. बिल्कुल साइलेंस है. बहुत अच्छी लग रही है साइलेंस. सारा टाइम मम्मी की ये करो, वो करो, ये नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वो नहीं करो. वो सबसे फ्री है. वो बहुत अच्छी लग रही है. चुप्पी जो है, ये जो शांति है, ये बहुत अच्छी लग रही है. एंड साइलेंस उसके लिए गोल्डन है एंड फ्रीडम तो वैसी उसके लिए बहुत स्वीट है. देन अगेन, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? Amanda, chocolate नहीं खाओ. देखो तुम्हें एक्ने हो गए हैं. एक्ने इज़ द severe फॉर्म ऑफ पिम्पल्स. जब पिम्पल्स हो जाते हैं ना टीनेज में जाके, तो कई बार पिम्पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसे बोलते हैं एक्ने. और देखो, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देख कर बात करो. And Amanda again in her dream world. I'm Rapunzel. I am not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. और वो सोच रही है रेपुंजल अपने आप को. रेपुंजल फेरी टेल में आपने पढ़ा होगा. एक फेरी टेल है इसकी, जिसमें कि वो एक गर्ल है जिसको टावर में बंद कर दिया है एक विच ने. और रेपुंजल आराम से अमांडा के हिसाब से आराम से अकेले रहती है टावर में. उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है. और उसके बाल बहुत लंबे हैं जो कि
जब विच को उस किले में घुसना होता है तो उसके बालों को पकड़ के अंदर चढ़कर आती है. Now the explanation. The parent sees Amanda eating a chocolate and tells her not to eat it. पेरेंट देखती है कि अमांडा चॉकलेट खा रही है, उसे डांटती है. Parent says that Amanda must not have forgotten the acne that she had got previously. कि तुम देखो पहले एक्ने जो हुए थे उसे भूलना मत. However, Amanda is lost in her own dreams and doesn't look up to the parent. और अमांडा तो बिल्कुल अपने सपनों में खोई हुई है, पेरेंट को देखती भी नहीं है. At this, the parent feels irritated. He says that Amanda, here should be she, because basically mother is talking to Amanda. Amanda should at least look at her when she is speaking to her. कि अमांडा उसे देखकर बात करे. But again, Amanda is in her own dream world. She imagines herself with golden-haired Rapunzel, who lived in a castle and had no care. वो सोचती है कि मैं क्या हूँ, रपंजल हूँ जो कैसल में रहती है. कैसल इज जो किला सा, और जिसे कोई केयर ही नहीं है. केयर का मतलब कोई वरीज, कोई एंजाइटी नहीं है. एंड अमांडा इमेजिन्स दैट लाइफ फॉर रपंजल must have been very peaceful and wonderful in the tower. However, she says that she won't let down her bright hair the way Rapunzel had done. All the troubles of Rapunzel, as we know, had started because of her doing so. पर वो कहती है कि नहीं, पर मैं अपने बालों को नीचे कभी नहीं गिराऊंगी. आपको मालूम है कि रपंजल जो है, सारी उसकी प्रॉब्लम्स ही जो है बालों से ही स्टार्ट हुई थी. जब वो बालों से विच जो है अंदर आती थी उसके कैसल में चढ़कर, और उसी बालों के थ्रू जो है शी स्टार्टेड कॉलिंग अ प्रिंस ऑल्सो इन हर कैसल. डिटेल में आप कभी पढ़िए इसको, रपुंजल की स्टोरी, और यू विल रियली लाइक इट. नाउ अमांडा सोचती है कि मैं रपुंजल हूँ जिसे कोई चिंता नहीं है. अगेन, स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अमांडा से सल्क करना बंद करो. कई बच्चे बहुत ऐसे लगते हैं ना, बड़े उदास से, सैड से रहते हैं. तुम इतनी मूडी हो और लोग सोचेंगे मैं तुम्हें नैग करती रहती हूँ. नैग इज अगेन एंड अगेन टेलिंग टू डू दिस, नॉट टू डू दिस. बार बार बोलना ये करो वो नहीं करो. तो ये उसको मदर कह रही है. द पेरेंट कीप्स टॉकिंग टू अमांडा अबाउट द वेरियस डूज एंड डोंट्स. जैसे होता है ना डूज एंड डोंट्स, जैसे आजकल हम आपको कोविड के टाइम पे डूज एंड डोंट्स बार बार इशू करते हैं ना, गाइडलाइंस, कि ये करो और ये नहीं करो. जैसे कि अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ये सब हो गए डूज. हाथ बार बार धो, ये सब हो गया डूज कि ये आपने करना है. और मास्क पहनो. एंड डोंट्स क्या हो गया, जैसे कि विदाउट मास्क मत जाओ बाहर, भीड़ में मत जाओ. ये हो गए डोंट्स कि ये नहीं करना. बट अमांडा रिमेन्स लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम्स. अमांडा सपनों में खोई रहती है. द पेरेंट थिंक्स दैट अमांडा इज नॉट रिस्पॉन्डिंग बिकॉज शी इज एंग्री. He feels annoyed and asks Amanda to stop sulking at once. She says that it has become a habit with Amanda to remain irritated always. On seeing her, one would say that the parent has nagged at her, and that's why Amanda is looking gloomy. The parent doesn't want Amanda to give others such an impression. तो पेरेंट को लगता है कि अमांडा हमेशा ऐसे मूडी सी रहती है, लोग सोचेंगे कि हमने इसको बहुत डांटा है. तो ये है पोएम जिसमें कि अमांडा और उसकी मदर का देयर आर डिफरेंट स्टेंजास. मदर इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड अमांडा की अपनी कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ इच्छाएं हैं जो वो चाहती है कि वो फ्रीडम मिले उसे. थीम. Robin Klein wants to make us clear that every child should be given freedom. यहाँ पे given होना चाहिए, give के बाद n, to enjoy his childhood. रॉबिन क्लेन क्लियर कर रहे हैं कि हर बच्चे को फ्रीडम चाहिए होती है. Unnecessary parental restriction may affect the growth of the child adversely. He has proved the fact, give an example of a young girl, Amanda.
ही नहीं है, पोइटेस है, शी। शी इज टायर्ड ऑफ her mother's instructions and controls. She is sad. Resultantly, Amanda has become moody and sulking natured. उसने बताया है, अमांडा का एग्जाम्पल दिया है, जिसको मदर इंस्ट्रक्शन देती रहती है, और इससे क्या हुआ, अमांडा बहुत रिजल्टेंटली क्या हुआ सा, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अमांडा बहुत मूडी हो गई। तो ये है आपकी पोएम की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ वी कम टू अमांडा की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो अमांडा को मिलती हैं जो वो पसंद नहीं करती है। जैसे कि उसकी मदर क्या इंस्ट्रक्शन देती है, डोंट बाइट नेल्स, डोंट हंच शोल्डर्स, स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, फिनिश होमवर्क, टाइडी द रूम। टाइडी बताया था आपको कि क्लीन करना, नीट रखना। क्लीन द शूज, डोंट ईट द चॉकलेट, लुक इन द आइज व्हेन बीइंग टॉक्ड। मदर को वो देखकर बात नहीं कर रही ना, तो शी सेज कि लुक एट मी। डोंट सल्क, सल्क मैंने बताया है कि जो बहुत ही सैड से, ऐसे ग्लूमी से, अपसेट से नज़र आते हैं ना कुछ बच्चे, वैसे। डोंट बी मूडी। ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो उसको मिलती रहती हैं और अमांडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हम देखते हैं कि अमांडा की डिज़ायर्स क्या है, अमांडा क्या चाहती है। शी शी वॉन्ट्स टू बिकम मर्मेड, जल परी। आराम से रहे, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के सी के पास जाए, वहाँ ड्रिफ्ट करे। ऑर्फिन हो, पेरेंट्स भी ना हो। ऑर्फिन इज विदाउट पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, और बिना किसी पेरेंट्स के रहे, जिसमें कि उसमें कोई डांटने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, एंड कोई भी गार्डियन ना हो जो उसको इंस्ट्रक्शंस देता रहे। टू बिकम रेपुंजल, रेपुंजल बन जाए, जिससे कि वो एक्सक्लूडेड सी लाइफ में, प्रिजन जैसे प्लेस में, कैसल में रहे, जहाँ पे कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन देने वाला ना हो। सो आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन, नाउ लेट अस डू द वर्कशीट, जो कि इसी पोइम में से एक स्टैंजा के ऊपर बेस्ड है। ये नेम हो गया, वर्कशीट नंबर हो गया। This stanza, I'm an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? Now the question answers. The fact that silence is golden, the freedom is sweet. First question. It means Amanda tells that, what should be the answer? She desires freedom, denies freedom, desires communication, desires dependence. She desires freedom. उसे क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए. Who calls herself an orphan? Orphan कौन बुला रहा है अपने आप को? Amanda herself. The lines above brings out the contrast between, क्या contrast है? ये जो लाइन्स है इसमें क्या contrast दिखाया हुआ है? Denial of freedom and the struggle faced by a growing child, the desire for dependence, importance of hate and love, the advantages of argument and revolt. No. The denial of freedom and the struggle faced by a growing girl. कि जो growing girls को लगता है कि हमें freedom नहीं मिल रही है, उस बारे में ये lines है. Fourth question, choose the option that tells the act of that are, just a minute, not true according to the given lines. कौन सी lines सही नहीं है? Statements जो बताती हैं Amanda wishes to be, जो true नहीं है, wishes to be away from her daily routine. Amanda क्या अपने daily routine से दूर रहना चाहती है? ऐसा तो कुछ नहीं था. Amanda perceives herself to be an orphan.
यस, ये चूज ऑप्शन दैट लिस्ट, ये ट्रू है। शी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट होना चाहती है। नो, वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है। शी सीम्स हैप्पी एज शी ड्रॉज पैटर्न यूजिंग हर हैंड्स, क्या वो पैटर्न हैंड्स से बनाती है? नो, फीट से बनाती है, तो ये भी नहीं है। तो ये सब, ये जो है ये ट्रू नहीं है, और ये ट्रू नहीं है, और ये ट्रू नहीं है। Now question number 5. Which word does roaming not correspond to? Roaming word. Roaming जो है यानी कि घूमना फिरना, कौन सा वर्ड है जो रोमिंग से रिलेटेड नहीं है? तो ये है रोविंग, तो रोमिंग से हो गया, वॉन्डरिंग भी। ड्रीमिंग, ड्रीमिंग जो है वो रोमिंग से रिलेटेड नहीं है। Now the sixth question. The literary devices used in the phrases the silence is golden, the freedom is sweet. तो ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया है? मेटाफर। साइलेंस को कंपेयर किया है गोल्ड से, और फ्रीडम को स्वीटनेस से। मेटाफर इज कंपैरिजन। इन सेवंथ क्वेश्चन, use the phrase, the above stanza uses the phrases look at me. Which of the following expression is incorrect with respect to the word look at? अब look at के साथ कौन सा फ्रेज नहीं अप्लाई होगा? look at the picture तो हो ही सकता है। look at the freedom, फ्रीडम क्या नज़र आती है? फ्रीडम हम फील करते हैं, फ्रीडम हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमारा आंसर होगा, इधर भी देख लेते हैं, लुक एट योर सेल्फ। यस, हम कह सकते हैं, ये वाला फ्रेज हम यूज़ करते हैं। लुक एट द बिल्डिंग, ये भी हम यूज़ करते हैं। तो हम लुक एट फ्रीडम नहीं हो सकता, फ्रीडम को नहीं देख सकते। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। एट्थ क्वेश्चन, जस्टिफाई द पोइट्स इमेजिनेशन टू बी अ मरमेड इन अमांडा। हम पोइट की इमेजिनेशन अमांडा बनने के लिए क्यों है, इसको जस्टिफाई करिए। मर्मेड बनने के लिए क्यों है? इसलिए है बिकॉज अमांडा इज सिक ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस, एंड शी फील्स दैट बीइंग अ मरमेड शी वुड बी ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली इन द सी, नोबडी वुड बी देयर टू स्टॉप हर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डिपिक्ट ऑफ अमांडा's नेचर? आपको इस इन लाइन से अमांडा की नेचर का क्या पता लगता है? ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि अमांडा जो है, शी इज़ अ मूडी गर्ल एंड शी डजंट वांट टू बी हैव गिवन एनी इंस्ट्रक्शंस, शी लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, उसे फ्रीडम चाहिए। तो ये आपने इस आंसर में करना है। सो आई होप ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी, एंड कंप्लीट दिस वर्कशीट and send it to your concerned teachers by tomorrow. Thank you and take care of yourself.